इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रवनीत आंटी को। रवनीत आंटी आए और सत्संग शेयर करें। हम सब इतने प्रिविलेज्ड हैं बिकॉज गुरु जी ने हमें सबको वन बाय वन चूज किया है, दो हम सब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सेक्शंस में होंगे बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन आवर कर्म्स। सो एटलीस्ट मैं अपने आप को आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी एंड दैट इज one feeling that I feel every morning when I wake up. चाहे कुछ भी हो, जैसा भी दिन हो, at the end of the day, at the starting of the day, I know that I am a blessed soul because Guruji had chosen me to be a part of his satsang, of his sangat. So this is one thought that keeps me going. चाहे अब कोरोना एक पैंडेमिक चल रहा है globally. I have a 1.5 year-old toddler, a baby girl. वो कभी गिरती है, कभी उसको चोट लगती है, कभी उसको बुखार होता है, कुछ होता है, and I see all my family members panicking. But touch wood, it is only and only His grace that I know He is protecting me and my child and my family. This thought keeps me going, and this thought, Sangat ji, is so strong. Guru ji ने मेरा फेथ इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है that we become so fearless, so positive, so content, and this is all his grace. So I'll start that when I saw Guruji for the first time, I was very young. I was in 9th, 10th class, and तब as a student आपके माइंड में सिर्फ यही थॉट आता है, अच्छा किसी बाबा जी को चले हैं, किसी गुरु जी को चले हैं, तो लाइक मार्क्स अच्छे आए. माय मैथ्स वाज वेरी वीक. तो जो गुरु जी को बैठे होना एम्पायर एस्टेट, सो तब यही थॉट आता था कि प्री फोर्थ में पास हो जाएंगे, बोर्ड्स में पास हो जाएंगे. माय मैथ्स इज वीक. तो समटाइम गुरु जी यूज्ड टू कॉल मी, एक बार दो बार प्रसाद देते थे, कड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, बर्फी प्रसाद. And इतना ज्यादा प्रसाद होता सी that it used to like even थोड़ा बहुत गिर भी जाता था. वो दोनों हाथ जोड़ के तो इतना भर जाते थे हाथ. And I remember जो वहाँ पे शब्द गुरबानी प्ले होता था, and I am very used to of Gurbani because I belong to a Sikh family. And that time my father was posted in Delhi. We were stationed at Air Force Station Palam. And then we got posted to Chandigarh, and 11th, I 12th, then I did engineering, and life took over. I completely forgot about Guruji and Sangat. And वैसे भी उस एज में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बस ठीक है. My mama ji used to go to Guruji. His faith developed over the years, and mama used to go, and then I used to went, just go along with mama and my mama ji, mami ji. And ठीक है, like life जैसे आपको अपने आप बिजी कर देती है. बीटेक में भी कोई आइडिया नहीं, no memory of Guruji. Then I started with my MBA in 2009-11, and 2011 I lost my mother. She had some kidney disease, and she was on dialysis, and we lost her on 8th of Feb 2011, which shook all of us. It is such an irreparable loss of losing your mother, any parent, any sibling, whomsoever you love the most in the world. It really shakes you up. जो इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा एक जो ट्रेजेडी होती है किसी के भी साथ, ये पेन इतना ज्यादा होता है, इमोशनल पेन इतना ज्यादा होता है that it somehow it changes you, it transforms you. So I have an elder sister, and she suffers from epilepsy. That is, she suffers from epilepsy since birth. So my parents used to take care of her, and जहाँ पे भी हम जाते थे, she used to come with us. Even कोई पार्टी या किसी रिलेटिव के घर, even यहाँ तक कि मूवीज में भी हम उसको अपने साथ लेके जाते थे. And so
In a way, that responsibility it fell on my shoulders because उसको feed करना, medicine देना, but my father took 90% responsibility on his shoulders. So losing your mother, then I was also working and अपने सिस्टर को देखती थी कि इसका क्या बनेगा. सो अब इमोशनली ना बिल्कुल आप जैसे रॉक बॉटम को हिट करता है ना, दैट वाज ऐसा एक फेज आ गया था लाइफ में. बहुत ही के ही एक बहुत पुराने uncle just stream a friend to my mama ji, and he handed me a book of the book. Nothing much वैसे, he just handed me the book and बहुत slowly पढ़ना, तेज मत पढ़ना, whatever you read, imbibe it, just read it slowly. And that was different for me to hear because जब all relatives जब आपके पास आते हैं after losing someone, they give their own क्या कहते हैं ज्ञान या whatever कि you have to handle everything, you have to be strong and so on. So this was different, giving me a book and saying read this book and emphasizing it, read it slowly. And I was an average reader, not कि हर बार मेरे हाथ में कोई book नहीं होती थी, not anything like that. So yes, I started reading the book, and while reading it, I felt somewhere, I am getting healed. Departed souls, they become your guardian angel. They visit you in your dreams. You're always connected to your mother, no matter what. You'll always be connected to her. She's just not there in the physical form, but in the spirit form, she is right by your side. This thought, it kind of, gave me a lot of strength. ये क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी, मेरे को तब नहीं पता था. गुरुजी को मैंने तब भी नहीं याद किया बिकॉज इतने सालों का गैप हो गया था. बट आफ्टर few years I could connect the dots that we forget him, but he never forgets us. And that is a lesson, that's a learning. We all are his little sweet disciples. And after reading that book, my spiritual journey began. Not decided by me, of course. It was his timing, it was his kripa that उन्होंने मेरे को एक guiding light की तरह, he gave me a good direction, a positive direction, a hopeful direction. Because वो ऐसा एक time था, ऐसा एक phase था that it is very easy for a 24-25-year-old to go down the bad road, the wrong road, the negative road. It was very easy because people are very negative, the world is very negative, they exploit, they look for such opportunities. Weak souls को बहुत easily manipulate किया जाता है. So in a way that phase में मेरे को क्या कहते हैं ना, गुरुजी ने संभाला. But this realization came obviously many years later when I actually connected the dots at what actually happened in the past. And then after reading that first book by Dr. Brian Weiss, Many Lives, Many Masters, I read all of the books, like autobiography, तो हम होते ही. Used to be a very expressive person, like
But then somehow I learned slowly how to manage my emotions, how to show a strong face when I, faced my father, my mamaji, my brother, that I'm fine, I'm okay. And I used to keep these books on my side table. रात को भी जब कभी I used to get upset and कभी याद आती थी मम्मा की, I used to open up a random book, random page, and Sanjay ji, believe me, वो कोई भी रैंडम बुक का रैंडम पेज मेरे को इतना हील करता था, इतना हील करता था दैट मेरे को एकदम से नींद आ जाती थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप सो लाइट. ये तब लगता था कि बुक्स आर मैजिकल, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. बट ये जो पीछे जो इसके फोर्स है, जो एनर्जी है, वो तो तब मेरे को समझ नहीं आई. बट अब I know it was all Guruji. It was all him. And then, ऐसे I was life चलती गई. I was working. कभी I was into teaching. Then I was into marketing. Then again back to teaching. कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहा. And then I think 2015 October November में one of my acquaintance. Now I can say she's a good friend, but tab she was an acquaintance. She contacted me on Facebook and she just said, "Hi, do you know Guruji?" And you won't believe, I said, "No, who's Guruji?" And she said, "Delhi, Chhatarpur." And I ekdam se remembered. I said, yes, I know Guruji. I used to visit him when I was in Delhi. I was very young. And she got so excited. She said, "Give me your number. I'm going to call you." And she called me and she said, "See, Guruji no mile ho. You've seen him, you've met him in physical form." And I said, "Yes." But I could not understand why she's so excited. And then she said that, I had a dream in which you and we are, decorating Guruji's darbar at my mother's place. So she's married and she's in Panchkula now, but then her mother is in Chandigarh. So we were at her mother's place decorating Guruji's darbar for the satsang. And I said, okay, I just didn't know how to react. What is a satsang? I didn't know because I've always been to Guruji in Empire State, and frankly, I had never been to Badamandir even. I've just been to Empire State, and after that, we were in Chandigarh, and never even thought about it. So when she said it with so much of excitement and enthusiasm, I said, "Okay, there must be something." And that why is she so excited? I said, "I had a dream." She said, "Okay," and she said that मेरे mother के घर में सत्संग होता रहता है. So whenever it happens the next time, you surely to come. I said, "Okay," and so we, October, November, December, January 2016, there was a satsang, and I asked my father that, one of my friends, she's really compelling के सत्संग में आना है. एंड पापा भी कहते हैं कि कभी इसका नाम पहले नहीं लिया. होता ही है. एंड वी डिडंट नो दैट ऐसे सत्संग हो रहे हैं, आप घर पे जाते हैं, दरबार सजा होता है, लंगर होता है. वी हैड नो आइडिया. बट एनीवेज माय फादर सेड ओके. सो कहते जाएंगे, घंटा बैठ के आ जाएंगे. We went around 7 p.m., 6:30 or 7 p.m. and we returned around 12:31 a.m. This is the magic of Guruji. This is the, enchantment of Guruji. That, and उस सत्संग के बाद समझ जी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई, लाइफ चेंज हो गई, मैं चेंज हो गई. एंड आई और जो है यही है, मेरे को जो मिलना है यहीं से दिस ऐसा है जिससे गले लगाते हैं. Books, I know about gurus, I know about these supreme powers and everything, but I didn't know I can actually, be a disciple. And
that satsang just transformed everything. वो दिन और आज का दिन संगत जी, um, I've I don't think I've ever been scared. I don't think I've ever been scared. Even when I delivered my baby in that delivery room, Sangaji, I was just not scared. I'm a person जिसको एक इंजेक्शन नीडल की सुई से भी मतलब वो prick से भी I used to start crying, and I was in the delivery room having my faith strong कि गुरुजी जो करना तुसी करना है, चंगा करना माड़ा करना जो तुसी करना है करो. Close my eyes and I'm just breathing Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. And even though I was having a normal baby, but the heart rate went up and there was an emergency C-section. So even then the doctor said that, your BP, your heart rate is such as if you're strolling in the park. And I just heard him, but I did not react. I was just focusing on Guruji. And luckily, I was also wearing Guruji's pendant. वैसे luckily कुछ नहीं होता. It is again, उन्होंने मेरे साथ होना था, वो है मेरे साथ. तो इसलिए वो pendant किसी को दिखा नहीं, वो मेरे साथ ही था. And he was there. He is there with each one of us. All we have to do is just, take a moment and realize that we are so blessed because he, the Supreme, our Guruji is with us. So, as I was saying about that satsang that I attended, which transformed my life, उस टाइम पे मेरी जो लाइफ की सबसे एक बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही थी, though I was a positive person and was reading books on spirituality etc, but still एक void था दिल में. Obviously losing a parent एक बहुत void था. And secondly, I was not able to get married. I was 30 or 29. I was not married, and I was seeing someone from a different caste. I'm a Jatsik and he is a Hindu Khatri, and I'm from a defense family. He was from a business family. So yeah, there were differences. So due to these reasons, हालांकि चलो ये reasons ठीक है, होते हैं काफी families में. I was not able to settle. And that was a major concern, and it was stressful at times. But after that satsang, I got so much love from all the sangat, all the aunties, all the uncles. इतना प्यार मिलता गया, इतनी attachment सबके साथ हुई. I made so many good friends. कई aunties, uncles से मेरी regular basis पे बात होने लग गई. And I was just enjoying this phase. And 2014, 15, 16, 17, 2017 September में मेरा रोका finally हो गया. But कहते हैं ना, like the destination doesn't matter, but the journey does. And इस journey में my biggest learning was I stopped chasing. I stopped asking questions. Why am I not getting married? Why am I not settling? Sabki shaadi hogi. I'm 30, I'm 31. I stopped doing that. In fact, the transformation was so beautiful that I started living in the present. I started enjoying my work. In fact, मैंने big salaries के पीछे भी भागना छोड़ दिया. I became a freelancer कि उतना कमाओ and relax रहो, enjoy करो life, जिसमें आप अपना योगा भी कर सकते हो, relatives, friends के साथ time भी spend कर सकते हो. So in my life, it was a beautiful change. I was just not chasing ambition of money or anything else. I was just enjoying my journey. Just enjoying, कहते हैं ना chilling करना जो कहते हैं. I was actually chilling with Guruji. Guruji, wow. And then I even stopped chasing, that why am I not getting married? My thought was कि करना है करो, नहीं करना मेरे भाग्य में नहीं है, नहीं करना नहीं करो. It is fine. I accepted it. And acceptance is
one of the biggest lesson in spirituality that you accept your karmas. आपके प्रेजेंट कर्म आपको शायद याद है, आपको पुराने कर्म आपको शायद नहीं याद है, बट जो भी आपकी डेस्टिनी में, आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. जितना मिल रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. So acceptance was one of the biggest lessons that Guruji taught me. अभी भी I sometimes struggle कि you know ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, but then all you need is that वो 2-3 minutes का pause and just remember him and just think about what he taught you. He taught you acceptance. He taught you a lot of patience. So yes, and then finally when I stopped chasing it, he gave it to me right there and then. He just gave it to me. And September में रोका हुआ, and September 2018 I got married. It was a very graceful wedding. Everything was just nearly perfect. Perfect कुछ नहीं होता, nearly perfect. गुरुजी की grace की वजह से the whole function. My wedding shopping, the संगत aunties, इतनी उन्होंने मेरी help की, इतना उन्होंने मेरे को guide किया. I did all the shopping on my own. I planned everything. You know, तब एक जो support system था, वो तो excitement में कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो अभी भी when I think about it, I couldn't believe that मैंने इतना कुछ कर भी लिया, हो भी गया. And Sanjay ji, the moment I reached my in-laws place in Panchkula on 21st की wedding, 22nd morning, आप देख लो, around 3 a.m., 4 a.m. when I reached, I think पहुंचने के आधे पौने घंटे बाद it started raining, and it rained cats and dogs for 3 days continuously. 3 days. हमारे जो दोनों घरों में टेंट लगे थे, वो भी एक एक हफ्ता लगे रहे. आप देखिए कि as if all the gods and goddesses were so happy, they were blessing us. The feeling was so beautiful. I was so touched कि गुरुजी यही चीज अगर शादी के ड्यूरिंग होती तो all the decoration and everything would have been a disaster. And he just waited कि जब मेरी डोली घर पहुंचे, घर, and my brothers had come. जब मेरे सब brothers I think घर चले गए, after that I think it started raining. It rained and it rained continuously for 3 days. That is his blessing. That is his kirpa. That is when he shows you that I am here for you. I am there for you, and I love you. It is just that हम भूल जाते हैं, again and again हम भूल जाते हैं that हम कितने ज्यादा blessed हैं, बहुत ज्यादा blessed हैं. He has chosen us. He has chosen me. कुछ तो मेरे में special होगा that he has chosen me. You know, he is cleaning me from inside. He's making my soul brighter, shinier. अंदर की मैल निकाल रहे हैं. That is सबसे बड़ी चीज. इससे ऊपर कुछ नहीं है. बीच बीच में you know, before the wedding and after the wedding, he used to visit in my dreams. Months before my roka, he came in my dream. He showed that I was wearing a chura, and मैं अपने you know अपने husband के साथ उसके घर में हूँ. And I look at Guruji and I immediately hug him. इतनी उन्होंने मेरे को दर्शन दिए, इतनी बार दर्शन दिए. And this is मतलब every time I narrate a satsang, I'm out of words. And हमेशा जो मेरा सत्संग बताने का जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा haywire हो जाता है because I just keep going with the flow. Though I've thought about it कि ये ऐसे बोलना है, उसके बाद ये बोलना, but while narrating the satsang, I think he just takes over me. He just tells, he just
wants me to say what I'm saying right now. So a lot of dream darshans that he gave, he warned me about cyst, that I have a cyst, and I had no symptom of a cyst. But for 3 4 days, I kept on thinking, why Guruji said कि cyst hai. That's it. And after 3 or 4 days, I got an ultrasound done, and there was cysts in both the ovaries. And I immediately started a homeopathic treatment, and it was cured within 2 months, 2 to 3 months. That's it. You can see, अगर उन्होंने आके बताया है तो ठीक भी उन्होंने ही करना है. Then one another satsang, he came in the dream of my brother. And before the wedding, I was very much working out, drinking protein shakes and this and that. Protein powder जो आता है, whey protein. And after 2 or 3 months, he came in my brother's dream. की protein लाई है, उन्होंने protein लेना बंद कर दे, कल ਨੂੰ ਔਖੀ होएगी. And immediately my brother, he woke up, he said, Jaldi, no, come downstairs. And I said, what happened? He said, Guruji scolded me, you're taking too much protein, stop taking protein. He said, kal no औखी होएगी. And संजय जी, मैं उसी से 1 2 दिन पहले एक बड़ा डब्बा जो वे प्रोटीन का, आई थिंक अराउंड 8 या 9,000 या 10,000 का आगे मैं लेके आई थी. एंड आई स्टॉप टेकिंग प्रोटीन. वो सारा डब्बा मैंने शायद दे दिया किसी को या फेंक दिया. That is faith. You don't question him. You don't doubt him. You just surrender. And after a while, I थोड़ा बहुत सर्च किया मैंने कि वे प्रोटीन के क्या बैड इफेक्ट्स हैं. तो उसके बैड इफेक्ट्स किडनी पे आते हैं. Too much protein in your body, it damages your kidneys. And when I read about kidney, and then immediately I thought about my mother. And I said, ठीक है, आज के बाद, if my guru is saying I'm not, protein is harmful for me, it is harmful, and I'm not going to take artificial protein. And ऐसी ये जो journey थी before my wedding, that transformation phase जब मेरा चल रहा था, I again had a dream darshan in which I was driving a car, and the steering of my car, it gets jammed. I'm not able to move the steering na right ko na left ko. It just gets jammed. And I see कि एक T point आ गया है, ना मैं right हो रही हूँ ना मैं left हो रही हूँ. मेरा सीधा एक आगे कोई forest है कि खाई है. I have no idea. And what I do is I close my eyes, I leave the steering, and I said, okay, Guruji, I'm coming to you. That is what, that dream, that darshan, it taught me surrendering. Complete surrendering. Fear of death is the biggest fear. And just imagine living without this fear hanging on your head. How easy, how relaxing, how wonderful your life will be. एक ना एक दिन सबने जाना है. और किसके पास जाना है? गुरुजी के पास जाना है. So why to be scared? Why to get scared? Why to, let this thought stress you? Why? So I closed my eyes, not डर के आंखें नहीं बंद की, calmly आंखें बंद की, staring छोड़ा, and with a smiling face I said in the dream that Guruji, मैं आ रही हूँ तोटे कोई. I was so young, but it's just that जो ये fearlessness है, ये भी उन्होंने ही दिया है. ये मेरे अंदर से नहीं आया. He has blessed me. He has blessed us all. Faith is also given to us by Him. Spirituality is also given to us by Him. What we are, what we, want to be, what we are doing in our daily lives, kahin na kahin He has contributed in everything. So whatever your dominant thought is, it is given by Him. So do not ignore it. So after that dream also, I understood that one should not have fear of death. And I will not have fear of death.
I will live what he has planned for me. मेरी जो life की डोर है, it is in his hands. I am his. My life is his. Everything belongs to him. And ऐसे कर करके काफी उनके गुरु जी के छोटे 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 बहुत ज्यादा, and each and every dream, it had a reason, it had a purpose, it had a learning. वो दर्शन होते हैं, वो सपने नहीं होते हैं. एंड ये पहले सत्संग में सुना था मैंने, बट आई एक्सपीरियंस्ड इट. एक ऐसी एक दर्शन में ही केम इन माय ब्रदर्स ड्रीम. एंड गुरुजी घर आए हमारे, एंड व्हेन ही एंटर्स द हाउस एंड ही ओपन्स द डोर, तो घर के अंदर से एक क्लाउड घर से बाहर निकला. एंड ही लुक्स एट दैट क्लाउड एंड ही सेज, अच्छा आ सी. And then he, walks around the house. He goes in my brother's room. He goes in the guest room. And then he sits on the bed. He tells to my brother, Pakha challa. And then my brother switches on the fan. Kehte tez kar. Tez kita. Cut kar. Slow kiya. Tez, slow, tez, slow. It went on. And ekdam se what my brother said, all the windows, the doors, they started to vibrate. इतनी जोर से वो vibration, वो खड़ 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 होने लगी, एकदम से boom. And then with that boom, my brother woke up. And then black cloud, I don't know, संगत जी guest room में क्या था, क्या नहीं था, किसी ने कुछ किया था. I am clueless and I cannot apply my mind. I cannot be restless and stress myself कि कौन से किसी ने क्या किया वहां पे. जो था, जो भी था, Guruji has taken it out. Guruji has taken out that negativity, and that is what matters. That is what matters, संगत जी. क्यों, कैसे, किसने, all these questions, इतने thoughts के साथ हम अपने आप को कितना burden करते हैं. When we leave everything to him, जब हम उनको surrender कर दिया, good, bad, then why to stress? Why to think about it so much? Overthinking is a disease, and half the stress that we all, we जो हमें तंग करती हैं, यही चीजें, overthinking ही हमें stress देता है. So अगेन आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक अरदास है, दैट ही इज द अल्टीमेट गॉड. ही इज अबव एवरीथिंग. कहीं और जाने की देयर इज नो नीड. कुछ भी और पाठ करने की, पढ़ने की, देयर इज नो नीड. लुक एट हिज फोटोग्राफ, मत्था टेकिए, उनसे बातें करिए. फोटो भी नहीं है, you have his picture in your heart and in your mind. Think about him doing everything, while driving, while bathing, while getting ready, while cooking. Just have a conversation with him in your heart and your mind. That is what I do. That is what I've been doing. He's kept me so busy in my family life. I'm not reading Shiv Puran currently, that I used to read a long time back. I feel it, but then he's kept me very occupied with my daughter, and this is what I always wanted. And now I'm living a dream, and it's only because of him. So lakh shukrana, Guruji. Keep us all positive. Keep us all attached to your lotus feet. We all need you, and please forgive us all for our bad karmas. Please forgive us all. We need your love. We need your guidance. Keep loving us. Keep protecting us. And Sangat ji, love him. Love him. Just love him. इतना उनको प्यार करिए कि you will become wonderful. Your life will become wonderful. You will stop worrying and stressing, and you'll see how beautiful, how lovely your life will be. Lakh shukrana, mere Guruji. I love you, Guruji. Lakh shukrana, Sangat ji. Thank you. Jai Guruji.
आज हमारे साथ उषा सिंह आंटी हैं। नेक्स्ट उषा सिंह आंटी को इनवाइट करते हैं और उनके सत्संग सुनेंगे। उषा आंटी प्लीज आइए। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना गुरु जी को सबसे पहले उनके दरबार में, उनके संगत में, सारे लोग, सारी संगत को बहुत प्यार वाला जय गुरु जी। और गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी हम सबको यूं ही अपने शरण शरण में बैठाकर अपना सत्संग सुनवाते रहिए और हमें सुनने को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं गुरु जी इस पैंडेमिक में, इस एंजाइटी वाली टाइम में, कि अभी भी उन्होंने सारी संगत को संभाला हुआ है, बहुत अच्छी तरह से संभाला है। और बड़े मंदिर का भी शुक्राना मुझे कहना है, क्योंकि सुबह सुबह जो जाप वो दर्शन होते हैं बड़े मंदिर के लिए, और जो वीडियो लेते हैं उनके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। कितनी ब्यूटीफुली वो करते हैं, और आज जोत में कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने गुरु जी का दर्शन कराया। सब कुछ इतना हम लोग को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें उसका शुक्राना बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ये गुरु जी की गिफ्ट है हम सारी संगत को इस समय के लिए, और हमारा फेथ और बढ़ाने के लिए, और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और भी अच्छी करने के लिए, जहां पर हम निडर होके रहें, कुछ भी हमारी लाइफ में हो, हम गुरु जी का हाथ पकड़े पकड़े उनके रास्ते चलते रहें। और उनका सत्संग हम जब सुनते हैं तो एक नई ऊर्जा आती है, एक नई स्ट्रेंथ आती है, एक नया फेथ आता है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये ज़ूम प्लेटफॉर्म के लिए शुक्राना कि इतनी अच्छी तरह से गुरुजी ने ये हम सबको गिफ्ट दिया है इस समय के लिए, क्योंकि गुरुजी तो पहले ही सब कुछ जानते थे जब गुरुजी चोले में थे। जैसे हमारी जर्नी इस मेरे ख्याल से इस देह में आने के बाद, इस शरीर में आने के बाद, वो तो कितने जन्मों से हैं। गुरुजी ने आके थोड़े दिन पहले ही मुझे बताया था कि जो एक इंसिडेंट हुआ था 86 में, तो गुरुजी ने कहा था मैं ही था जो आगे, जिसने आके बचाया था। तो इतना क्लियरली गुरुजी खुद ही बता रहे हैं। और गुरुजी आपसे टेलीपैथी में बातें कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब में कुछ भी नहीं है, हम सब तो धूल हैं, पर गुरुजी चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें। किस तरह से? क्योंकि आजकल हम घर के बाहर भी नहीं जा सकते, वहां पर ना कुछ सत्संग हो रहे, ना मंदिर जा सकते हैं। हम अपने घर बैठे हुए गुरुजी को अपने अंतर मन में रख करके, उनके सामने जोत जला करके, और एकदम ध्यान में कुछ समय जरूर निकाले, चाहे जितना हमारी प्रॉब्लम हो, जितनी एंजाइटी हो, ना मन लगे तो भी आप बैठिए, खाली एक शब्द लगा लीजिए, वही आप सुनते रहिए, जाप करिए। ये बहुत ही सुनहरा टाइम है गुरुजी से जुड़ने का, 1 to 1। ये जो गुरुजी पहले कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन, मुझे तो लगता है ये डायरेक्ट कनेक्शन इसी टाइम के लिए है, यही है, क्योंकि इस टाइम तो हम किसी से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं पर्सनली, पर गुरुजी से हम बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही कहते हुए मैं, आज टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ा सा सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी के बारे में और गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी एक्सपीरियंसेस सत्संग जो है, मुझे लगता है मैं तो कितने जन्मों तक मैं उनके सत्संग सुना सकती हूँ। तो इसलिए मैं टाइम का देख करके मैं कुछ सत्संग जैसे जैसे गुरुजी कहेंगे बताऊंगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा है, आज के टाइम को देखते हुए जो आज प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं वो यही है कि हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है, हमें अपना अंतर्मन साफ रखना है। और गुरुजी ने ये कहा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं वही शेयर करूंगी जो डायरेक्टली गुरुजी ने मेरे से कहा है, और जो एक्सपीरियंस डायरेक्टली मेरे साथ हुआ है वही मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, या मेरे फैमिली के साथ हुआ है। तो सबसे पहले गुरुजी ने जब 98 में हम गए, तो गुरुजी ने जब बुलाया उस समय तो हम भी बहुत परेशान थे। बहुत ही वो टाइम बहुत ही मैं कहूँगी एक माँ की तरह। मैं भी बहुत यंग थी बचपन, तो यहाँ पर यूएस में बहुत साल हो गए अकेले रह करके सब बच्चों को पालना। यहाँ पे आपको मालूम है सब कुछ अपने से करना, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, फैमिली रेस करना और उनको सही दिशा दिखाना, वो भी गुरुजी की कृपा से उस समय भी वो थे।
कि उन्होंने शक्ति दी और सब अच्छी तरह से गुरुजी ने निपटाया। तो जब गुरुजी का बुलावा आया बेटी के थ्रू, जब उसकी प्रॉब्लम थी अस्थमा की, जब हम गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने राइट अवे उसी समय मेरे से कह दिया था कि इतने डाउट का कोई काम नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। दिस वर गुरुजी's वर्ड्स बिकॉज आई वाज डाउटिंग हिम कि ये इतने यंग से हैं, ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे। आई वाज रियली थिंकिंग अबाउट दिस। और आंटी लोग पैर दबा रही थी, मैं सोची थी ये क्यों पैर दबा रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये तो इतने यंग है क्या, ऑल दैट नेगेटिव जो हम सबके मन में होता है। तो गुरुजी ने एक झटके से वो सारा कुछ हटा दिया मेरे मन से, क्योंकि गुरुजी को तो हम सब के बारे में मालूम है, अंतर्यामी है। आई हैड नो क्लू कि गुरुजी कौन थे, और उन्होंने एक झटके में सब कुछ बता दिया जो मैं सोच रही थी। एंड मैं उनके पास बैठ के रोना शुरू किया, और उनका ऑरा जो था वो मिलियंस ऑफ सन, जो आप सोच नहीं सकते हैं कितने भगवान इतने सुंदर हो सकते हैं। और भगवान की मुस्कुराहट ही सबसे सुंदर मुस्कुराहट हो सकती है। जब गुरुजी स्माइल करते थे ऐसा लगता था कि गुरुजी को ये सारी संगत निहारती रहती थी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कुछ ह्यूमरस फनी से जो मेरी नादानी के जो कुछ सत्संग है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए आज के टाइम में तो बहुत दुख है, और हम सब ने सुना हुआ है कितने क्योर किया गुरुजी ने, कितनी लाइव्स दी हैं, मेरे फैमिली में इतनी लाइव्स दी, इतनी बीमारियां ठीक करी हैं, इतनी चीजें करी हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले मैं शरीर ठीक करता हूँ और रोग ठीक करता हूँ। अगर आपका शरीर रोग से पीड़ित है तो आप कैसे ध्यान में बैठ सकते हो। तो गुरुजी हमेशा, आप जैसे जाते थे उनका हमारा एक्सरे हो जाता था, और गुरुजी उसी हिसाब से हमें ब्लेस करते थे, हम लोगों को बगैर बताए हुए। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे कि आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता था, ना कहना पड़ता था, और गुरुजी बस आपको देख के ही आपकी सारी बीमारियां ठीक कर देते थे। इतने हम लोग ने सत्संग सुने इस दौरान, पैंडेमिक के टाइम, 1.5 साल अब तो हो रहा है। गुरुजी की बड़ी मेहर है, इतना टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही जब मैं वहां बैठती थी तो गुरुजी के लिए एक कटोरी में कुछ आता था ढका हुआ। तो आप देखिए, जैसे आपको जब जिससे दिल से प्यार होता है तो आपको उसके बारे में सब कुछ जानने के मन होता है कि वो क्या खाते हैं, गुरुजी क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, हम लोग चले आते। ऑल दैट क्यूरियोसिटी ऑफ लाइक आई वुड से लाइक इनोसेंट क्यूरियोसिटी आई हैड। एंड गुरुजी की मेहर उन्होंने अपने चरणों में बताया हुआ था, और सेवादार उनके लिए कटोरे में कुछ लेके आए थे। तो मैं बड़े मन से देख रही थी और सोच रही थी कि गुरुजी क्या खा रहे हैं, उनको क्या पसंद है, नॉट कि क्या खा रहे हैं, पर गुरुजी को जानने की कोशिश कर रही थी, पहचानने की एज ए ह्यूमन बीइंग। रियली उस समय हमें नहीं मालूम था। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है। देखिए उन्होंने कैसे मेरे डाउट ठीक करे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी आपके डाउट्स कैसे क्लियर करते हैं। जब आपके डाउट्स आपके माइंड से हटते हैं तब आप उनसे सिमरन में बैठ सकते हैं। अगर आप अपनी सारी शंकाएं, दुविधाएं, एंजाइटी लेके बैठेंगे तो आप नहीं बैठ पाएंगे, ना आप जुड़ पाएंगे, ना आप टेलीपैथी से उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो गुरुजी ने जो मुझे सिखाया वही मैं बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें कि उन्होंने जैसे एक डाउट जो मेरा था ना एज ए स्टूडेंट, जो किंडरगार्टन से धीरे धीरे इतनी छोटी छोटी अजीब अजीब तरह की क्वेश्चन जो मेरे थे, गुरुजी वो डाउट्स हटाते हटाते वो किस तरह से हमें सिखाना चाह रहे थे, और सिखाया उन्होंने, और अभी भी सिखा रहे हैं। और मैं बहुत ही गुरुजी के इसलिए धन्यवाद देती हूँ। तो जब कटोरी में वो आया तो गुरुजी ने उसको एक तो उन्होंने खाया, और मुझे नहीं मालूम क्या था, और फिर मैं यही सोची थी तो गुरुजी तो अंतर्यामी हो जान गए, और उन्होंने उस कटोरी से मैं निकाल कर ये वो मुझे बुलाया और मेरे हाथ में दे दिया। और वो क्या था, वो सूखा हुआ वो डेट्स को खजूर था, और गुरुजी ने मुझे दे दिया। तो मैं सही बताऊं, मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा कि ये तो गुरुजी ने कैसे जान लिया कि मैं यही सोच रही थी। एंड आई एम सो अशेम्ड कि मैं गुरुजी के खाने के लिए क्यों ये सोच रही थी। आई वाज वेरी अशेम्ड दैट डे। पर जब गुरुजी ने हाथ में दिया तो मैं
बैठ के मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं ना दिमाग में क्या चल रहा है हमारे, गुरुजी कहते हैं खा ले। मैंने मुंह में तो डाल लिया। अब आपको मालूम है सूखा कैसे आप खा सकते हैं, आप बहुत टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे उसको चबा के खाने की कोशिश कर रही थी एंड काफी खा लिया। अब उसमें एक सीड होता है ना काफी बड़ा। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे सीड भी खाना है क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसे हाथ में लेके ऐसे बैठी थी। तो गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, एनो रख ले अपने पर्स में। सी हाउ ही नोज एवरी लिटिल थिंग। उसको मैंने एक नैपकिन में करके अपने पर्स, वो गुरुजी का प्रसाद है। तो वो किस तरह से छोटी छोटी बातें गुरुजी ने समझाई हैं, बताई हैं और उससे ऊपर उठाया भी है कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। एक बार शुरू में गुरुजी के लिए हमेशा वो ढका हुआ ग्लास में आता था और कवर रहता था ग्लास, कुछ दिखता नहीं था। तो शुरू के दिन है वो, तो मैं उस समय यही सोचती थी गुरुजी को क्या पसंद है, वो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, शरबत पीते हैं, यही दिमाग में चल रहा था। तो यही सोच रही थी, तभी दोबारा गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी ने खाली एक सिप पिया और वो मुझे दे दिया और कहते हैं ले। तो मुझे समझ नहीं आया, आई वाज न्यू एट दैट टाइम, मुझे कोई तौर तरीका नहीं मालूम था वहां पर। और मैं वो ग्लास लेके, मैंने सोचा गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए कहा है ये ग्लास, तो फिर वो ग्लास लेके उनके बगल में बड़ी देर तक खड़ी रही। तो गुरुजी ने सोचा हुआ ये तो कमली है थोड़ी, तो मेरे तरफ देख के कहते हैं गुरुजी पी ले। सो आई वाज स्टन, I didn't know how to drink out of Guruji's glass. How can you drink out of Guruji's glass in front of Guruji? And the whole Sangat is looking at me. मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्यों सोच रही थी। ये मैं अपनी वो नादानियों की बात बताना चाहती हूँ कि how I also learned so much from Guruji. And मुझे समझ में ना आया तो मैंने वो ग्लास को ना ऐसे करके, क्योंकि हम लोग गुरु को इतना सम्मान देते हैं ना, तो हम झूठा नहीं कर सकते उनके ग्लास को, हम उस ग्लास से नहीं पी सकते। और गुरुजी ने पी ले तो मुझे लगा कि मैं कैसे पीऊं, तो मैं बड़े ध्यान से उसको ऊपर करके ऐसे मुंह में डाल रही थी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी इन अ वेरी फनी वे। तो क्योंकि आपको मालूम है गुरुजी तो बिल्कुल ये रिचुअल, ये वहमों से परे थे, वो कुछ भी नहीं ये सब मानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक से पी ले, बैठ जा। और मैं बैठ गई, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने फिर उसको पूरा पिया। वो चाय था, गुरुजी का चाय प्रसाद था। एंड गुरुजी से जा एनो रख गया। तो मैं किचन के बाहर सेवादार को दे दिया। मैं आके बैठ गई। उस समय मैंने गुरुजी से मन ही मन बहुत बहुत माफी मांगी कि गुरुजी मेरी ये नादानी है, प्लीज आप इसको बख्श दो। मैं आज से कभी भी नहीं सोचूंगी आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ भी नहीं गुरुजी, पर आप मुझे ये सब दुविधाओं से हटाइए। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो मन ही कहीं भटक जाता है। टू टेल यू द ट्रूथ, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। धीरे धीरे गुरुजी ने कितनी चीजें बताई, उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस दिए जिससे उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हम कहीं भी हो वर्ल्ड में, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम कहीं भी जाते थे, चाहे हम वेकेशन में यूरोप में हो, कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हो, हर जगह जो भी एक्सपीरियंस वहां होता था और जैसे हम गुरुजी के पास उसके बाद जाते थे, गुरुजी पूरा रिपीट कर देते थे। और मेरे से कहते थे तू खड़े होके आंटी अपना सत्संग सुना फ्रेश। तो गुरुजी ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे करके खुद उन्होंने बताया कि वो अंतर्यामी है, ही इज ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ये सारे गुण किसमें होते हैं? खाली भगवान में, ईश्वर में होते हैं। कैसे पता चल जाता था और कैसे वो ठीक कर देते थे, कैसे बीमारियां ठीक कर देते थे, कैसे वो एक ही टाइम में कितनी जगह देखते थे, कैसे उनकी खुशबू, हम किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो कैसे खुशबू आ जाती है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो गुरुजी कोई नॉर्मल गुरुजी नहीं थे। और ये सारी चीजें, अब शिव पुराण पढ़ने, ये सारी चीजें खाली महादेव, और गुरुजी तो खुद ही कहा था उन्होंने कि मैं ही महाशिव हूं। और इसीलिए उन्होंने महाशिव का मंत्र जाप भी दिया हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। उन्होंने खुद कहा संगत को कि ये जाप किया करे, दिन रात दिमाग में चलता रहना चाहिए इसका। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी बताया कि गुरुजी के हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी से खुशबू आती है।
वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो सकता, ओनली गॉड कैन हैव। और किस तरह से अगर अर्थक्वेक भी आता था, गुरुजी पैर यूं नीचे रख देते थे और अर्थक्वेक बंद हो जाता था एम्पायर स्टेट में। कौन ये यूनिवर्स को चलाने के लिए, ये जो मौसम है धूप ठंडी, किस तरह से सत्संग एक बार नोएडा में हो रहा था, किस तरह से सब जगह बहुत ज्यादा बारिश थी, गुरुजी को आना था, किस तरह से गुरुजी ने वहां ऐसा कर दिया था कि खाली घर में ही खाली बारिश नहीं हो रही थी और बाहर बहुत बारिश हो रही थी। He controls everything. He controls nature. He controls every tiny little thing. तो आप ये मान के चलिए, ये कोई नॉर्मल गुरुजी नहीं है, ही इज गॉड, ही इज 100% गॉड। और यही कहते हुए मैं कुछ आपको सत्संग सुनाऊंगी जो जताता है कि गुरुजी कौन थे और कैसे कैसे गुरुजी आपको एक्सपीरियंस दे करके आपको रियलाइज करवाते थे अपनी शक्तियों का। यूं ही नहीं मैं कह रही हूँ, एक एक जो मैं कह रही हूँ यही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी किस तरह से होता था। एक बार एम्पायर स्टेट से हम गए और गुरुजी के चरणों में बैठे थे। पहले तो गुरुजी 7 दिन बैठे रहते थे, दरबार खुलता था एम्पायर स्टेट का और 7 दिन जाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। और गुरुजी ने कोई समय, गुरुजी की कृपा है, उन्हें लगता था हम लोग सिंगापुर से आते हैं और सही बताऊं तो खाली गुरुजी के लिए आते थे। जब पता चल गया गुरुजी हैं कौन तो कहीं भी मन नहीं लगता था और यही लगता था कि हम जल्दी से गुरुजी के दरबार में पहुंच जाएं। तो ऐसे ही गुरुजी ने, जब हम जाते थे तो गुरुजी कहते थे, अक्सर कहते थे कि इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। तो ऐसे ही गुरुजी ने कहा कि तू इत्थे आती है और फिर दिन में कहाँ जाती है, क्या करती है? तो मैंने कहा गुरुजी कभी कभी कोई रिश्तेदार बहुत हैं, बुला लेते हैं तो चले जाते हैं उनके पास। तो कहते हैं और जाके उत्थे जाके निंदा चुगली सुनती है। एंड आई वाज इन अ डिलेमा, क्योंकि यही होता था कि लोग इधर उधर की बातें करते थे। तो गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली बताया कि तू जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। दिस वर हिज वर्ड्स। सो गुरुजी ने मुझे आदेश दे दिया जो मुझे करना है। आई वाज सो हैप्पी दैट डे कि मुझे और कुछ बात ही नहीं करनी किसी से, और लोग चाहे जो सोचे, पर मुझे यही लगता था कि मैं बस अपने सत्संग ही शेयर करना है, अपने सत्संग ही शेयर करना है। और इतने सत्संग शेयर कर करके आप बिलीव नहीं करोगे, इतने लोग फैमिली में जुड़े, सारी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सारे लोग 45 people sometimes we used to go together to गुरुजी सत्संग। और गुरुजी बहुत खुश होते थे, कहते थे संगत लेके आ, नई संगत लेके आ। सबसे ज्यादा खुशी गुरुजी को होती थी जब नई संगत आती थी और गुरुजी उनको ब्लेस करते थे। जस्ट लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ अ गुरु, क्यों बुला बुला करके आपको ब्लेस करते हैं और ब्लेस करते हैं और आपके सारे बुरे कर्म अपने बॉडी पर लेते हैं, सारी बीमारियां अपने ऊपर लेते थे गुरुजी। एंड ही इज टू सफर, ही इज टू सफर। ऐसे कहाँ मिलेंगे गुरुजी? एंड ऐसे एक दिन गुरुजी ने कहा कि एक तो आज कितने गई थी, कैसे बचाते भी हैं फैमिली को, यही मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी तो एक दिन ऐसी कोई फैमिली में आया था, उन्होंने कहा कुछ रिश्ते की बात है किसी की, उनकी बेटी की, चलो तुम मेरे साथ ऐसे से देखना। आई वाज रेडी, आई वेंट विद देम और बहुत ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा सब लग रहा था। बॉय वाज़न्ट देयर, ही वाज सपोज्ड टू कम इन 2 days। तो उसके बाद फिर शाम को हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहते हैं आज कितना फिर रही थी, लाइक एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। एंड आई सेड गुरुजी आज ऐसे ऐसे मुझे जाना था तो मैं वहां चली गई थी और गुरुजी बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड गुरुजी सेड नहीं, उत्थे बात नहीं बनेगी। सो आई वाज शॉक्ड एंड गुरुजी सेड कि द बॉय इज ऑलरेडी मैरिड, उसका एक छोटा सा बेबी भी है, इमेजिन। I went back, I told all this and I said you have to find out about the boy। पता किया तो that was true। ये गुरुजी की पावर क्या है? I never even said anything to गुरुजी। He knows each and every step
ऑफ आवर जर्नी, उस समय भी और अभी भी। ये तो ऐसी चीजें हैं जो आदमी एकदम देख करके धक रह जाता है कि कैसे हो गया, गुरु जी को कैसे मालूम था। पर गुरु जी बताते हैं आपको, दीज आर जस्ट इनिशियल स्टेप्स। गुरु जी आपको रियलाइज कराते हैं कि गुरु जी हैं कौन, एंड आपको उससे फेथ बढ़ता है और आपकी पूरी फैमिली जुड़ती है। गुरु जी यही चाहते हैं आपके आसपास जितने लोग हैं सारे लोग जुड़े गुरु जी से, ब्लेसिंग ले उनसे, और यही हो रहा था। And at that time I didn't understand, but that was Guruji's doing. It was his blessing. And एक बार गुरुजी ने यूं ही कहा कि मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा नोएडा में। बस ये लास्ट में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मुझे लगता है कि गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग उस दिन थी। I mean, I cannot pinpoint क्या ब्लेसिंग थी, पर ब्लेसिंग ये थी कि मैंने गुरुजी के चरण धोए और गुरुजी की आरती धोई और गुरुजी के चरणों में पिया मैंने उस दिन। एंड गुरुजी की सेवा करने का मिला 1-to-1, जो मेरा बहुत मन होता था। किस तरह से मैं उनके आसपास ही पूरे टाइम खड़ी रही कि गुरुजी को क्या चाहिए। और वो भी बहुत फनी इंसिडेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी, मुझे पता चल गया था गुरुजी भगवान है। तो सोचिए अगर भगवान कहते हैं आपसे कि मैं आपके घर आऊंगा, आप क्या करेंगे? तो जुलाई का टाइम था, बहुत गर्मी थी दिल्ली में, और आई वाज सो हैप्पी। एंड गुरुजी ने डेट नहीं दी थी, कहती है मैं 10 आऊंगी। तो एनीवे आई स्टार्टेड क्लीनिंग द हाउस माई सेल्फ, एवरी पार्ट ऑफ द हाउस आई वाज स्क्रबिंग, सब नई नई चीजें ला करके। एंड सारे घर में सारे लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे कि What are you doing? ये नौकर चाकर हैं, ये लोग साफ करेंगे। And I said, आप लोग को क्या हो गया है? आपके घर भगवान आ रहे हैं, आप नौकरों से क्यों साफ कराएंगे? ये हमारे कर्म काटने के लिए आ रहे हैं, मुझे साफ करने दो। एंड चाहे जितना पसीना हो, एंड आई वाज यूज्ड टू क्लीनिंग द हाउस एनीवे, यूएस में इतने साल तक यही किया हम लोगों ने। तो आई वाज जस्ट आई वाज इन दैट डेज। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सफाई करते करते रोती रहती थी, क्योंकि रोना आता था, खुशी के रोना आता था कि गुरुजी आएंगे, मैं साफ कर रही हूँ, गुरुजी के कदम यहाँ पड़ेंगे, उनके चरण पड़ेंगे। ये सोच सोच के अंदर से जो खुशी हो रही थी वो खुशी के आंसू थे। एवरीथिंग आई वाज क्लीनिंग। एंड उसके बाद मैंने सोचा कहाँ बैठेंगे गुरुजी, तो एक सोफा था ड्राइंग रूम का, उसको तैयार किया। एंड आई आस्क्ड द टेलर कि आप मेरे घर पर आओ और इसके ऊपर कुछ कवर आप यहीं बनाओ, घर में बैठ करके मेरे सामने बनाओ, साफ सुथरा होना चाहिए। उसके ऊपर वो बनाया। फिर फ्लावर वाली को मैं लेके आई, मैंने कहा किस तरह से यहाँ फ्लावर का डेकोरेशन करना है। ऐसा लगा जैसे भगवान आ रहे हैं। इट वॉज नॉट वेरी ऑस्टेंशियस, बट जस्ट वेरी सिंपल, जैसे मेरा मन था उसी हिसाब से सारी चीजें। पर कैसे गुरुजी गाइड करते हैं। गुरुजी ने कहा कि कोई पुरानी संगत नहीं आएगी, सारी नई संगत होगी, क्योंकि पुरानों को ऑलरेडी मैंने ब्लेस कर दिया। ये बहुत बड़ा गुरुजी का उस समय ये भी टीचिंग थी कि गुरुजी तभी कहते थे जो पुरानी संगत होती है उनको ऊपर भेज देते थे एम्पायर स्टेट में, और नई संगत को कहते थे मेरे सामने बैठो। दिस वर ऑल गुरुजीज वर्ड्स। और उसके बाद जब सारी तैयारियां धीरे धीरे होने लगी, एंड everything was getting ready, and I was just thinking कि गुरुजी कहाँ बैठ के अपना लंगर खाएंगे, संगत से परे करके। तो ऊपर पढ़े अपने पेरेंट्स के बेडरूम में, वहां पर सारी तैयारी कर दी। एंड मैं अपना कमरा साफ कर रही थी बहुत अच्छी तरह से, जहां मैं हमेशा रहती थी, जाती थी। एंड माय ब्रदर यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि वो तुम्हारे कमरे में थोड़ी ना आएंगे, तुम अपना कमरा क्यों साफ कर रही हो? ऐसे देखना वो जरूर आएंगे। मैं एम्पायर स्टेट से आती हूँ तो यहाँ बैठ के गुरुजी को बहुत याद करती हूँ, जरूर आएंगे वो। एनीवे ये बात हो गई। उसके बाद गुरुजी ने लिस्ट कहा किसको किसको बुलाना है, एंड ही टोल्ड मी एग्जैक्टली किसको किसको बुलाना है, पूरे नेबरहुड में, पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में, एवरीबॉडी। एंड ऑल्सो ही सेड एग्जैक्टली क्या बनना है लंगर में, एंड कितना खड़ा प्रसाद। उस समय गुरुजी हाथ से नहीं दे रहे थे खड़ा प्रसाद, उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से दूंगा। एंड ही टोल्ड एग्जैक्टली कैसे बनना और कितना बनना है, द अमाउंट। एंड क्या हुआ कि केटरर की बात हो रही थी, तो वही गुरुजी के पास बैठी थी, तो एक अंकल थे, तो
वो गुरुजी ने प्रसाद दिया तो हम लोग प्रसाद लेके बाहर चले गए, खा रहे थे। तो वो हमसे कहते हैं, अपना कार्ड देके कहते हैं कि आंटी कभी भी जरूरत पड़े तो मैं केटरिंग करता हूँ, गुरुजी को मेरा खाना बहुत पसंद है। आई वॉज वेरी हैप्पी। ऐसे बहुत अच्छा है गुरुजी, हम आएंगे तो मैं आपको भी बुलाऊंगी, आ रहे हैं वो। तो ही वॉज हैप्पी। मैं आ गई तो गुरुजी मुझे बुला के कहते हैं केटरिंग का हो गया? हमने कहा यस गुरुजी, अभी यहाँ से संगत ने ये दिया है कार्ड। गुरुजी लुक्ड एट इट एंड सेड नहीं, ये नहीं, तो अपने डैडी को कहे, वो इंतजाम करेंगे। आई वाज शॉक्ड कि क्यों मना कर दिया गुरुजी ने। एनीवे गुरुजी से कुछ बोल नहीं सकते, वापस चले गए। जब सुबह मैं बैठी थी और सोच रही थी कैसे फोन करूं, उन अंकल को मना करूं, तभी वो लैंडलाइन मेरी बजी एंड आई पिक्ड अप द फोन एंड इट वाज दैट अंकल आई हैड गिवन द नंबर। एंड वो कहते हैं आंटी आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। लास्ट नाइट मेरी जो वाइफ है उनको गुरुजी ने मुक्ति दे दी, शी वाज वेरी सिक। तो देखिए गुरुजी को ऑलरेडी मालूम था ना, एवरीथिंग ही न्यू। सो उस पूरे फेज में he revealed so many things that he किस तरह से उसको मना करके केटरिंग का दूसरा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी जब आना था, उन्होंने सारा रिक्वायरमेंट करा था, कौन लेने जाएगा गुरुजी को और कौन उनको वेलकम करेगा। एवरी स्मॉल डिटेल he was guiding, क्योंकि मुझे कोई को कुछ भी नहीं मालूम था। मैं किसी के घर नहीं गई थी इंडिया में जब जिसके घर गुरुजी आए हों, क्योंकि मैं सिंगापुर में रहती थी। जाती थी बस गुरुजी के दरबार में, वहीं बैठती थी और फिर वहीं से हम लोग वापस आ जाते थे। तो our only connection was just Empire State with गुरुजी and I didn't know anybody। संगत में सबको देखते थे पर मेरा किसी से कोई ऐसी बातचीत नहीं होती थी besides जिनको गुरुजी ने भेजा था। सिंगापुर में बहुत संगत भेजी थी गुरुजी ने। सो उनको गुरुजी ने खुद ही कहा था कि तेरी सहेली है, जो भी जैसे जैसे गुरुजी ने कनेक्शन बनाया। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब कौन आएगा लेने के लिए। he told my sister, my youngest sister and my brother-in-law कि ये मुझे लेने आएंगे और तू मुझे रिसीव करेगी। एंड बारिश के दिन थे तो गुरुजी ने कहा कि my father asked, so I asked गुरुजी, तो कहते हैं नहीं बारिश, he said नहीं बारिश नहीं होगी। Then he said one sentence, जितने गुरुआ आते हैं उनसे पहले बारिश होती है। But I didn't pay much attention क्योंकि उन्होंने कहा था बारिश नहीं होगी। So I told my father। तो वो टेंट लगे हुए थे and इतनी डेकोरेशन थी and my sister and brother-in-law had already left to pick up Guruji because specific time वो देते हैं गुरुजी। And they were on the way coming। उस समय इतनी कस के बारिश हुई और मेरा ब्रदर मेरे से कहता है कि तुमने तो कहा था बारिश नहीं होगी, तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा नहीं सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी सेड कि जितने गुरु आते हैं उतने पहले बारिश होती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सब कुछ धूप निकल आई, सब कुछ अच्छा हो गया। एवरीथिंग वाज टोटली फाइन। दैट वाज अनदर पावर ऑफ गुरु। किस तरह से बारिश उन्होंने कराई क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था एंड उसके बाद सब कुछ सूख गया, सब कुछ अच्छा हो गया। एंड गुरुजी केम एंड ऑफ कोर्स जैसे गुरुजी का आदेश था उनको वेलकम किया एंड उनके चरण वो किया एंड गुरुजी आके बैठे एंड सबने उनको वेलकम किया। आरती, माय पेरेंट्स, मेरी भाभी जो थी पहले एंड देन आई डिड व्हाट आरती एंड गुरुजी ने हाथ से प्रसाद दिया एंड जो प्रसाद देने के बाद जो हाथ होते हैं तो उनको हाथ धुलाया। फिर उसको किस एक स्टेप, everything is just like a new, जैसे अभी हुआ है। everything is fresh in my memory and one thing I must say कि गुरुजी is कैसे भगवान अदृश्य हो जाते हैं ना, उस दिन मैंने देखा गुरुजी के पास मैं खड़ी पूरे टाइम जैसे at his service। I was just standing beside गुरुजी trying to figure out क्या चाहिए गुरुजी को। चाय प्रसाद भी गुरुजी ने कहा कौन बांटेगा, किसको कैसे देना है, everything he was directing। and गुरुजी के लिए लंगर अलग से जो बना था वो ऊपर बेडरूम में था। तो जैसे सत्संग शुरू हुआ तो गुरुजी ऑल ऑफ अ सडन मैंने पीछे मुड़ के देखा, साइड में देखा, हम वहीं खड़े हैं सारे और गुरुजी अपने आप से उठ करके और वो स्टेयरवेज में जाकर के ऊपर चले गए। इतने लोग हम लोग खड़े। आई वाज लुकिंग एट हिम
गुरुजी ने कैसे अदृश्य कर दिया, उस समय हमारे पर्दा डाल दिया, वो अपने से उठ करके ऊपर चले गए। एंड माय ब्रदर स्मोकर, अब उसने सोचा ये कमरा सेफेस्ट है, मेरा कमरा जो था वहां वो स्मोक कर रहे थे, एंड गुरुजी ओपन दैट माय डोर, एंड बाय द टाइम आई रियलाइज कहाँ गए गुरुजी, हम जल्दी से ऊपर गए, एंड ही वाज ओपनिंग माय डोर एंड ही वाज इनसाइड माय रूम, एंड माय ब्रदर हु वाज स्मोकिंग, उसने पीछे कर दिया। तो exactly गुरुजी was listening everything, the dialogue we had with my brother कि मेरे कमरे में जरूर आएंगे गुरुजी, and then he went my parents room, वहां पे वो बैठे and मेरे से कहते हैं कि तू जा नीचे जा करके सत्संग कर। So I was sharing the satsang and by meantime पूरी फैमिली गुरुजी के साथ बैठ करके लंगर खा रही थी और गुरुजी उनसे हंसी मजाक कर रहे थे। And when I went back, I was little disappointed कि मुझे वो चांस नहीं मिल पाया। एंड गुरुजी ने वो एक गुलाब जामुन बचाया हुआ था, वो मुझे अपने प्लेट से उन्होंने दिया, ये तेरे वास्ते। इतना प्यार करते हैं गुरुजी, हर संगत को प्यार करते हैं, और स्पेशली अगर गुरुजी कोई आपको हुक्म दे और आप वो करें, चाहे आपका मन हो ना हो। मेरा मन ऊपर लगा हुआ, किस तरह से गुरुजी ने वो प्यार से वो प्रसाद रखा था मेरे लिए, उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद जब वो गुरुजी के जाने का टाइम हुआ, तो उस दिन संडे था, ये आफ्टरनून में था। हम हमेशा गुरुजी के दरबार में जाते थे, चाहे जो भी हो। तो गुरुजी जैसे उनके चरण छुए, वो जाने लगे, तो गुरुजी कहते हैं आज आने की लोड़ नहीं है, आज तेरी बहुत फैमिली आई है, तू एंजॉय कर। ये गुरुजी ने सीख दिया कि हमें फैमिली की भी देख रेख करनी है। सो उस पूरे टाइम में गुरुजी ने इतनी चीजें सिखाई हैं, इतनी चीजें बताई हैं, how we have to live our life. I must say, गुरुजी को मैं बहुत धन्यवाद शुक्राना करती हूँ कि इतने ब्यूटिफुली उन्होंने वो पूरे एक्सपीरियंस से कितनी कितनी सीख दी है, जो हमें आज तक याद रखनी चाहिए। फैमिली वैल्यूज, फैमिली के लिए टाइम निकालना, उनके साथ भी एंजॉय करना चाहिए। एंड मैं सही बताऊं, पूरे घर कितने दिनों तक गुरुजी की खुशबू से महक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहां जहां गुरुजी गए हैं, हर एक कमरे में जैसे भी गए, मेरा कमरा इतनी महक गुरुजी की, मैं कितने दिन सो नहीं पाई वहां पर। हर एक कमरे में, नीचे ड्राइंग रूम में जहां से आए गुरुजी, कैसे आए, महीनों तक इतनी खुशबू आ रही थी, बहुत बहुत। तो ये बहुत मेरे दिल के करीब है ये एक्सपीरियंस। और आज पता नहीं क्यों गुरुजी की बहुत याद आ रही थी, उनका जन्मदिन भी आने वाला है, और ये टाइम खुशियां का होता है, और गुरुजी हर घर में खुशियां दें और हर घर में बरकत दें, सेहत दें। और यूं ही हम गुरुजी को अपने घर इनवाइट कर रहे हैं। आजकल तो हम सभी गुरुजी के घर में हैं, गुरुजी हर एक के घर में हैं, और जो भी आप भोग बनाते हैं वही आप गुरुजी को अर्पण करते हैं। तो ही इज देयर इन ईच एंड एवरी हाउस राइट नाउ, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो यही कहते हुए काफी टाइम हो गया, मैं यही अब समाप्त करूंगी। गुरुजी चाहेंगे तो एक दिन में सारे सत्संग आपको सुनाऊंगी, फिर से आप जितनी बार सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग उतनी बार मिलती है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है सुना है नहीं सुना है, या नए नए सत्संग इतने गुरुजी ने आज के टाइम में दिए हुए हैं। अभी परसों में कितने नए नए सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी तो यही है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं गए हैं गुरुजी, वो सब कुछ देख रहे हैं और उसी हिसाब से आपको डायरेक्शन देते हैं। तो यही कहते हुए गुरुजी से धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और ऐसे ही आप हर संगत को ब्लेस करते रहिए गुरुजी, और अपने से जोड़ते रहिए। डायरेक्ट कनेक्शन आप ही करा सकते हैं गुरुजी, हमारी बुद्धि को ठीक रखिए। और इस समय हम सबको आप ये एंजाइटी, ये फियर, ये सब चीजों से हटाइए आप, और निडर होकर के हम आपसे जुड़े, खुश होकर जुड़े आपसे, और पॉजिटिव होकर जुड़े गुरुजी। यही मैं आपसे विनती करती हूँ। जय गुरुजी एंड थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।